Hello, welcome back once again in Principle of Electronic Communication subject. So, in the last lecture, we have completed the two different types of wave propagation also, that is sky wave propagation and space wave propagation. And in the end, we have compared all the three types of wave propagation which are classified on the basis of frequency range, that is ground wave propagation, sky wave propagation and space wave propagation. So till now in the wave propagation chapter, we have completed about the three different types of wave propagation which are classified on the basis of frequency range. And in the end also we have compared among the three types of wave propagation. Now moving ahead now in today's lecture, we are going to start with the ionosphere and its effect. So as I told you earlier when I am explaining you the skywave propagation, so what we have seen in skywave propagation, the waves are reflected from the ionosphere layer which are present in the atmosphere. So in the atmosphere, how many layers of ionosphere are there, and at what time they are actually present, and what about the thickness of that layer present in the atmosphere. So we are going to see the in detail, and the topic is ionosphere and its effect. So this is a separate topic which may come in your examination, may come for 4 marks also, may come for 6 marks also. The question will be explain the ionosphere and its effect. So this is also a very important topic with respect to this chapter. So as you can see, I am sharing you the diagram of ionosphere layers which are present in the atmosphere. In this diagram, first of all, you must understand in the horizontal line, it is showing the local times. Local time is what? The 24-hour time, how this layer are present at what time, at what schedule it is showing you. So in the horizontal line, it is showing the time. Time means what? From night time starting after 12 to the morning 6, then from morning 6 to noon 12, then from 12 to evening 18, and then from 18 to the night 12. So in this way, this horizontal line indicating you the 24 hours of complete schedule of a one single day along with night. And in the vertical direction, you are able to see it is indicating the distance in kilometer. So at what distance from the earth's surface, at what level these layers are present, different types of layers are present. So at what distance that they are appeared. So in the vertical direction, you are able to see the distance in kilometer with respect to earth's surface, what are the different layers are present. ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आप लोग को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको जो टॉपिक समझा रहा हूँ वो आयनोस्फीयर लेयर्स का टॉपिक समझा रहा हूँ। ये आयनोस्फीयर लेयर किस तरीके से अफेक्ट करती है एटमॉस्फेयर में, क्या हिसाब से वो प्रेजेंट होती है, कितने डिस्टेंस पे वो प्रेजेंट होती है, वो उसका डायग्राम भी आपके सामने विजिबल है। तो हॉरिजॉन्टल में जो है वो पूरा कंप्लीट शेड्यूल ऑफ डे एंड नाइट टाइम है इन आवर्स, और वर्टिकल में आपको डिस्टेंस यानी अर्थ से कितने डिस्टेंस पे कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। तो जैसा कि आपको पता है इन आयोनोस्फीयर देयर आर 4 लेयर्स, डी लेयर, ई लेयर, F1 लेयर एंड F2 लेयर। तो सबसे पहले तो आपको मैं डी लेयर के बारे में समझाऊंगा। तो जो सबसे करीब अर्थ सरफेस के सबसे करीब की जो आयोनोस्फीयर की जो लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है? डी लेयर। ठीक है, इसके बारे में इतना मिलता है कि ये जो लेयर है वो अर्थ सरफेस से कितने किलोमीटर के रेंज में एग्जिस्ट होती है? इट इज एग्जिस्ट एट द रेंज ऑफ 70 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस से 70 किलोमीटर पे ये लेयर प्रेजेंट होती है, और ये लेयर आपको सिर्फ डे टाइम में नजर आएगी। ड्यूरिंग द नाइट टाइम दिस लेयर डिसअपियर। द रीजन, इसका रीजन क्यों कि ये नाइट टाइम में डिसअपियर हो जाएगी? बिकॉज आयनाइजेशन जो होता है वो ड्यूरिंग द डे टाइम स्ट्रांग होता है, क्योंकि सन की एनर्जी ड्यूरिंग द डे टाइम में आपको क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू नाइट टाइम। नाइट टाइम में तो सन डिसअपियर हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ सन द एनर्जी इज एग्जिस्ट ड्यूरिंग द डे टाइम, दैट्स वाई तो आयोनोस्फीयर की लेयर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।
तो डी लेयर जो है वो आपको कब मिलेगी, कब प्रेजेंट रहेगी, ड्यूरिंग द डे टाइम ओनली। तो दैट्स वाई 0 to 6 मतलब ये आपके जो स्टार्टिंग जो नाइट मिडनाइट जो होता है, रात के 12 से सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 तक का यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन में दिख रहा होगा। फिर अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम 6 to 12 and then from 12 to evening 18 means evening 6 p.m. तो ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली आपको ये लेयर्स में थोड़ा सा क्या मिलेगा, थिकनेस मिलेगा, ये थोड़ा सा लेयर आपको प्रेजेंट मिलेगा। फिर आफ्टर 18 to 24 जब सन वापस से डिसअपीयर हो जाता है तो फिर तो ये इसकी लेयर की क्या हो जाती है, थिकनेस मौजूद नहीं रहती है, प्रेजेंट नहीं होती है। तो जो डी लेयर का हिसाब किताब है वो आपको समझ में आया। तो जो डी लेयर है वो कब आपको मिलेगा, ओनली डे टाइम में ही मिलेगा, ड्यूरिंग द नाइट टाइम ये आपको लेयर नहीं मिलेगा। सिमिलरली ई का भी वैसे ही हिसाब किताब है। ई लेयर जो है वो उससे थोड़ा ऊपर के डिस्टेंस में मिलता है। इट इज़ जैसे कि मैं आपको बोला डी लेयर 70 किलोमीटर तक का डिस्टेंस में एग्जिस्ट होता है, तो ई लेयर इट इज़ नियर अबाउट 100 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक का एग्जिस्ट होता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर की रेंज में ये ई लेयर एग्जिस्ट होता है। ई लेयर का भी वही काम है, उसी तरीके से वैसे ही फंडा है कि ई लेयर भी ड्यूरिंग द डे टाइम आपको मिलेगा, ड्यूरिंग द नाइट टाइम इट में डिसअपियर। तो ये नाइट टाइम में क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, नहीं मिलेगा। इसका रीज़न ही यही है। क्यों, क्या रीज़न है? बिकॉज आयोनाइजेशन स्ट्रॉन्ग कब होगा, ड्यूरिंग द डे टाइम, बिकॉज ऑफ सन एनर्जी। तो सन एनर्जी की वजह से आयोनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये लेयर्स जो एक्स्ट्रा लेयर बोला जाता है, डी लेयर ई लेयर, वो तभी मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर थी। फिर इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ F1 लेयर और F2 लेयर के बारे में। F1 लेयर F2 लेयर का कैसा दिया हुआ है आपके सामने, ये थोड़ा उससे ज़्यादा ही डिस्टेंस पे एग्जिस्ट होता है। इट में एग्जिस्ट अप टू 200 किलोमीटर या 200 प्लस किलोमीटर के रेंज में फ्रॉम द अर्थ सरफेस ये लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या बताया ये आपको, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, जब नाइट का टाइम होता है तो F1 लेयर F2 लेयर दोनों कंबाइन होके एक F का काम करते हैं, एक F लेयर का काम करते हैं। समझ में आ रही बात मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये जो डे टाइम है 6 to 18, ये डे टाइम में दोनों लेयर सेपरेट हो जाती है, F1 और F2 लेयर। बट ड्यूरिंग द नाइट टाइम दोनों कंबाइंड होके एक ही लेयर होती है, F लेयर करके बोला जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, आपको इसका रीजन सबको मालूम है, सबको वही बार बार मैं रिपीट करा रहा हूँ कि ड्यूरिंग द डे टाइम ओनली द आयोनाइजेशन इज स्ट्रॉन्ग। तो आयोनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी वजह से ये लेयर्स भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसके लिए ये लेयर्स को दो सेपरेट लेयर्स में समझाया गया है, F1 लेयर और F2 लेयर। तो ड्यूरिंग द डे टाइम आयोनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से दोनों लेयर सेपरेट हो जाती है, बट ड्यूरिंग द नाइट टाइम एज द आयोनाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बट बिकॉज ऑफ इतने स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन होने की वजह से ये नाइट में भी मौजूद रहती है। ये लेयर ये नाइट में भी मौजूद रहती है, बट दोनों सेपरेट नहीं रहती, वो दोनों कंबाइंड होकर एक ही लेयर फॉर्म करती है, दैट इज ओनली F लेयर। तो इसके लिए आपको ड्यूरिंग द नाइट टाइम ये आपको जो डार्क लाइन में जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो ये F लेयर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि दोनों F1 F2 कंबाइंड होकर एक ही लेयर का फॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से आफ्टर 18 to 24 ऑल्सो यू आर एबल टू सी ओनली वन स्ट्रेट लाइन, सिंगल लाइन। बट ड्यूरिंग दिस डे टाइम, ये डे टाइम में दोनों भी लेयर सेपरेट सेपरेट है, F1 लेयर F2 लेयर दोनों भी क्या है, सेपरेट सेपरेट है। जैसे कि आपको ये दिखा रहा है F1 लेयर, नाउ F2 लेयर अलग अलग टाइम स्टैंड पे अलग अलग डिस्टेंस पे एग्जिस्ट होता है। जैसे कि F2 लेयर दिसंबर में कहाँ पे दिखेगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। दिसंबर मतलब विंटर का टाइम होता है, तो विंटर के टाइम में जाहिर सी बात है सन की एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं होती बिकॉज ऑफ क्लाउडी वेदर होने की वजह से। तो दैट्स वाई इसका डिस्टेंस जो है वो अर्थ सरफेस से करीब में रहेगा F2 का दिसंबर टाइम पीरियड में। फिर उसी तरीके से F2 का जो जून का जो टाइम है आपको जो दिख रहा है, तो जून में जो एकदम सन जो है वो बहुत जो सन एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, हीट बहुत ज़्यादा मिलती है। तो दैट्स वाई सबसे ऊपर की लेयर, सबसे टॉप की लेयर में आपको इधर पे दिखाई दे रहा होगा, यानी ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भी क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। और एक टाइम आपको इधर पे भी दिखा रहा है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में होते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो वो टाइम स्टैंड को बोलते हैं इक्विनॉक्स पीरियड। तो इक्विनॉक्स पीरियड में ये F2 लेयर इस तरीके से ये डिस्टेंस पे आपको मिलेगा। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो पा रही होगी। ये आयनोस्फीयर की जो 4 टाइप के अलग अलग लेयर्स है, तो कब लेयर कौन से डिस्टेंस पे, कितने के डिस्टेंस पे
प्रेजेंट होती है, वो सब चीज़ इस डायग्राम में आपको समझाया जा रहा है। और हर लेयर का ना अपना अलग अलग काम है। क्या अलग अलग काम है? कोई अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करता है, कोई दूसरी टाइप की फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो लेयर सबसे स्ट्रांग रहेगी वो सबसे स्ट्रांग फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को रिफ्लेक्ट करेगा। जो लेयर की थिकनेस इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी तो वो लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल के लिए रिफ्लेक्ट होने के लिए काम आएगा। बात समझ में आ रही है? स्काई वेव प्रोपोगेशन में हम लोग ने देख चुके हैं, स्काई वेव प्रोपोगेशन में जो फ्रीक्वेंसी रेंज है इट इज गिवन 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। तो 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज में भी कोई लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, कोई हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। तो लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल कहाँ से रिफ्लेक्ट हो सकता है? आपके नॉर्मल डी लेयर, ई लेयर से। और जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा? ये ऊपर की लेयर जो F1 F2 लेयर से रिफ्लेक्ट होगा। तो ये सबका लेयर का एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहले डी लेयर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। डी लेयर इज द लोएस्ट लेयर एंड एग्जिस्ट एट अ हाइट ऑफ 70 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ विद एवरेज थिकनेस ऑफ 10 किलोमीटर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि डी लेयर 70 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ में एग्जिस्ट होता है और उसकी जो थिकनेस होती है, यानी डी लेयर की थिकनेस की बात हो रही है, इसकी जो चौड़ाई होती है डी लेयर की जो थिकनेस, वो कितने किलोमीटर तक की होती है? 10 किलोमीटर तक की होती है। इट रिफ्लेक्ट्स, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? वेरी हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ड्यूरिंग द नाइट टाइम दिस लेयर डिसअपियर। तो ये किसके लिए रिफ्लेक्ट होने के लिए यूज होता है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज होता है। और एक सेंटेंस यहाँ पे जोड़ दिया गया है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम दिस लेयर डिसअपियर। तो जैसा कि बोला हूं मैंने आपको, नाइट टाइम में ये लेयर एग्जिस्ट नहीं होगी बिकॉज ऑफ नो सन एनर्जी, तो आयनाइजेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट लेयर जो आपको दिया हुआ है ई लेयर, इट एग्जिस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर विद थिकनेस ऑफ 25 किलोमीटर। तो ई लेयर जो है वो फ्रॉम द अर्थ सरफेस कितने किलोमीटर पे एग्जिस्ट होता है? 100 किलोमीटर, और उसकी खुद की थिकनेस कितनी होती है? 25 किलोमीटर की थिकनेस होती है। ई लेयर ऑल्सो डिसअपियर इन नाइट्स, ई लेयर भी नाइट में डिसअपियर हो जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू रिफ्लेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी वेव इन डे टाइम। तो ड्यूरिंग द डे टाइम में खाली यूज होता है इसका, किस लिए यूज होता है? फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रिफ्लेक्ट करने के लिए। देन मूविंग अहेड, F1 लेयर एंड F2 लेयर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले F1 लेयर, सो इट एग्जिस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। और F1 लेयर कितने डिस्टेंस पे एग्जिस्ट होता है? 180 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड हैज अ थिकनेस ऑफ 20 किलोमीटर। F1 लेयर की जो थिकनेस है वो कितने किलोमीटर की है? 20 किलोमीटर की है। ड्यू टू हाई आयनाइजेशन दिस लेयर प्रेजेंट ड्यूरिंग नाइट एंड कंबाइन विद F2 लेयर। तो ये जो चीज मैंने आपको बताया डायग्राम में भी जो दिख के आ रहा है, नजर आ रहा है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम में क्या होता है? बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन होने की वजह से नाइट टाइम में भी ये लेयर एग्जिस्ट होता है, बट किसके साथ में? F2 लेयर के साथ में कंबाइंड होके। तो F1 F2 कंबाइंड होके दोनों एक ही लेयर का फॉर्म करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द डे टाइम दोनों सेपरेट काम करते हैं, F1 लेयर और F2 लेयर। लास्ट F2 लेयर पे आते हैं। इट एग्जिस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर विथ थिकनेस ऑफ 200 किलोमीटर। देखो इसकी सबसे ज्यादा थिकनेस होती है F2 लेयर की। तो ये कितने की डिस्टेंस से कितने डिस्टेंस तक प्रेजेंट होता है? 250 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से इतने किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये लेयर एग्जिस्ट होता है, जिसकी खुद की थिकनेस ही कितनी है? 200 किलोमीटर। द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स टेक्स प्लेस ड्यू टू F2 लेयर। तो जो एक्चुअल रिफ्लेक्शन की जो बात कर रहा हूँ मैं, जो हम लोग स्काई वेव में पढ़े हैं आयनोस्फीयर लेयर से रिफ्लेक्ट होता है, तो वह एक्चुअल लेयर जो रिस्पॉन्सिबल है रिफ्लेक्शन करवाने के लिए वो कौन सा लेयर है? F2 लेयर है। तो F2 लेयर की थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है, यानी कोई लेयर प्रेजेंट रहे या ना रहे, लेकिन कौन सा लेयर प्रेजेंट रहेगा? F2 लेयर तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आए? तो जो भी रिफ्लेक्शन का जो पॉसिबिलिटी जो होता है वो बिकॉज ऑफ दिस लेयर होता है। और जैसा आपको बताया F2 लेयर सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो ऑल टाइम में प्रेजेंट होता है, चाहे वो डे टाइम बोलो चाहे वो नाइट टाइम बोलो, इट इज प्रेजेंट एट ऑल टाइम। तो ऑल टाइम में ये लेयर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सब लोगों को समझ में आया? आपको मैंने क्या समझाया आप लोगों को? तो आयनोस्फीयर लेयर्स के बारे में मैंने समझाया और उसका इफेक्ट किस तरीके से होता है, मतलब किस तरीके से एग्जिस्ट होता है एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में पूरा विद द हेल्प ऑफ दिस डिटेल डायग्राम, वो मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको मैंने क्या किया? समझाया है। फिर इसी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन कभी आता है, पूछता है व्हाई द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन इज बेटर ड्यूरिंग नाइट। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन जो है वो बेटर क्यों होता है नाइट टाइम। कभी कभी आप लोग भी देखते होंगे कि क्वालिटी जो ऑफ रिसेप्शन है, जो आप सिग्नल रिसीव कर पा रहे हो, जो क्वालिटी ऑफ वॉइस जो आपको है ड्यूरिंग द नाइट टाइम, इट इज़ वेरी बेटर एज कम्पेयर टू डे टाइम।
तो डे टाइम से बेटर नाइट टाइम में। तो क्यों ऐसा है वो चीज पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन इज बेटर ड्यूरिंग नाइट। तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन में कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एट नाइट द F1 and F2 लेयर कंबाइन टू फॉर्म वन लेयर एंड अदर टू लेयर्स D and E disappears। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही दिया हुआ है जो समझाया है कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम F1 और F2 लेयर कंबाइंड होकर एक F लेयर फॉर्म करती है, और बाकी की जो दो लेयर है, दूसरी D और E लेयर, वो नाइट टाइम में क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। As the lower layers are absent, the absorption of the signal does not take place which was taking place during the daytime। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या बता रहा है ये, जैसा कि एज द लोअर लेयर्स, ये जो दो लोअर लेयर्स है डी एंड ई लेयर, ये दोनों भी लेयर ड्यूरिंग द नाइट टाइम डिसअपियर हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, जो अपन रिफ्लेक्ट कराने के लिए भेजते हैं अपने वेव को, तो कभी कभी तो ये होता है कि ये डी और ई लेयर एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं वो अपने वेव को, रिफ्लेक्ट करने के बजाय। रिफ्लेक्ट तो F2 लेयर से होगा, तो ये डी और ई लेयर डे टाइम में जब प्रेजेंट रहते हैं तो ये क्या करते हैं, अपनी वेव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं खुद के अंदर। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि अगर डी और ई लेयर अगर डे टाइम में प्रेजेंट होती है तो उसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अपनी वेव ये दोनों लेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाए। तो अगर नाइट टाइम में दोनों है ही नहीं तो एब्जॉर्प्शन का तो सवाल ही नहीं आएगा। डी और ई लेयर ड्यूरिंग द नाइट टाइम दोनों भी क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। तो जो एब्जॉर्प्शन वाला मामला होता है ड्यूरिंग द डे टाइम, वो अपना मामला जो है वो दूर हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। So that's why this improve the strength of reflected signal and hence the quality of reception is better। तो जो एब्जॉर्प्शन का मामला था ड्यूरिंग द डे टाइम, उसकी वजह से क्या होता है कि वेव रिफ्लेक्ट अच्छे से नहीं होके आ पाती है। जो आप वेव को रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं आयनोस्फीयर लेयर से, तो ड्यूरिंग द डे टाइम वो लेयर पॉसिबिलिटी ये कि एब्जॉर्ब हो सकती है डी और ई लेयर से, तो उतने अच्छे से रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न बैक नहीं आएगी। लेकिन ड्यूरिंग द नाइट टाइम ये दोनों लेयर क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। तो अपना जो वेव है वो अच्छे से कहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगा? एफ लेयर से रिफ्लेक्ट होके आएगा। So during the night time, F layer will reflect the wave properly and return back to the earth. So that's why the quality of reception is better during the night time as compared to daytime। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। तो रीजन क्या है, क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन बेटर क्यों होता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम? क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन बेटर इसलिए होता है क्योंकि डी और ई लेयर दोनों भी नाइट टाइम में डिसअपियर हो जाती है। तो जो एब्जॉर्प्शन का मामला ड्यूरिंग द डे टाइम होता है बिकॉज ऑफ दैट लेयर, वो नाइट टाइम में नहीं होगा। So that's why the wave will properly reflect from the F layer, combined F layer, and will reflect back properly to the earth surface। That's why the quality of reception is better during the night time। So I hope आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो पाई होगी कि why the quality of reception is better during the night time। It may ask in your question, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है या डायग्राम के थ्रू पूछ सकता है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ना अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं आगे चल रहा हूँ, मैं समझाते जा रहा हूँ आप लोग को। डेफिनेटली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो आप मुझे पूछ लेना, कमेंट कर लेना, मैं आपको वापस वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। ना आगे बढ़ते हैं, हम लोग को कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन अंडरस्टैंड करना है। ये पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन है, जिसमें से सबसे पहली टर्म है वो है एक्चुअल एंड वर्चुअल हाइट। सो एक्चुअल एंड वर्चुअल हाइट का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। एक्चुअल एंड वर्चुअल हाइट का कॉन्सेप्ट क्या है? आपको पता है कि स्काई वेव प्रोपोगेशन में क्या होना चाहिए? स्काई वेव प्रोपोगेशन में आपकी वेव आयोनोस्फीयर लेयर से क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्ट होके आना चाहिए वापस से रिटर्न टू द अर्थ सरफेस। ये एक्चुअल पाथ फॉलो होना चाहिए। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए स्काई वेव प्रोपोगेशन में? जैसा मैंने आपको बार बार बताया हूँ कि क्या होना चाहिए कि आपकी वेव जो आप अर्थ सरफेस से भेज रहे हो वो आयनोस्फीयर की लेयर से रिफ्लेक्ट होके, टकरा के रिफ्लेक्ट होके क्या होना चाहिए? वापस से रिटर्न बैक टू द अर्थ सरफेस आना चाहिए। तो अगर वेव ऐसा पाथ फॉलो कर रही है, अगर वेव ऐसा ही प्रॉपरली पाथ फॉलो कर रही है, वो आयनोस्फीयर लेयर से प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होके वापस से रिटर्न बैक टू द अर्थ सरफेस आ रही है, तो वो जो डिस्टेंस, जो हाइट मिल रही है ना अपने को, जहाँ पे वेव एक्चुअली आयनोस्फीयर लेयर से रिफ्लेक्ट होके रिटर्न टू द अर्थ सरफेस हुई है, तो उस हाइट को बोलते हैं हम लोग एक्चुअल हाइट। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर हो पा रही है? अभी हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते तो मैं शायद, हो सकता है मैंने अपने सेंटेंस में कुछ चेंजेस कर दिया रहूँगा तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है ये? द एक्चुअल हाइट ऑफ द लेयर इज द हाइट ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द वेव इन द आयनोस्फीयर लेयर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ वेव।
सॉरी, आई वांट टू क्लियर ईयर, मैंने जो अभी अपने सेंटेंस आपको बोला था वो सेंटेंस में मैं चेंजेस करता हूँ। एक्चुअल हाइट जो होती है वो क्या होती है, जहाँ पे वेव आपकी रिफ्रैक्ट होके वापस से टू द रिटर्न टू द बैक टू द सरफेस हो रही है। तो ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है ना, दिस इज आयोनाइज्ड लेयर, ये आयोनाइज्ड लेयर है। तो आयोनाइज्ड लेयर से आपकी वेव क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट होके क्या हो रही है, टू द अर्थ सरफेस आ रही है। देखो दो चीज समझो, आप लोग क्लियर कर लो, एक होता है रिफ्रैक्शन और एक होता है रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या फर्क होता है, पहले तो ये आप लोग क्लियर कर लो, अंडरस्टैंड कर लो। रिफ्रैक्शन का मतलब वो होता है जहां पे वेव आपकी बैंड हो जाए, टर्न हो जाए। तो बैंड होना, टर्न होने को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और टकरा के एग्जैक्टली वापस से पलटना, टकरा के एग्जैक्टली वापस से पलटना, उसी स्टैंड में पलटना, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो दो चीज है आपको क्लियर करना है, एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, बैंडिंग ऑफ वेव्स, टर्निंग ऑफ वेव्स। और रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, आफ्टर इंसिडेंटिंग एग्जैक्टली रिटर्निंग, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो एक्चुअल हाइट के बारे में क्या समझाया गया है, एक्चुअल हाइट जो है वो एक्चुअली क्या होती है, आपकी वेव ना रिफ्रैक्ट होती है फ्रॉम द आयनोस्फीयर लेयर। तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव हो रहा है और रिफ्रैक्ट होके जो वेव आपकी अर्थ सरफेस पे आ रही है, तो वो जो हाइट जो कवर हो रही है रिफ्लेक्ट होके वेव का, उसको बोलते हैं एक्चुअल हाइट। सो व्हाट इज एक्चुअल हाइट, यहाँ पे समझाया हुआ है, द एक्चुअल हाइट ऑफ द लेयर इज द हाइट ऑफ एक्चुअल पाथ of the wave in the ionosphere layer due to refraction of wave। तो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव से जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, जो हाइट कवर हो रही है, उसको बोलते हैं एक्चुअल हाइट। अब हम लोग को अंडरस्टैंड करना है वर्चुअल हाइट क्या है। The incident and refracted rays follow the path that are exactly the same as they would have been reflected by the layer above the ionosphere, and this is called as virtual height of the layer। तो मान लो, मान के चलो आइनोस्फीयर लेयर के बाहर भी कोई एक, ऊपर भी क्या होगा, एक लेयर हो सकता है। ये आइनोस्फीयर लेयर था जो आपको हाईलाइटेड किया हुआ था। तो मान लो जो वेव आपकी रिफ्रैक्ट होके आ रही है आइनोस्फीयर लेयर से, वो तो एक्चुअल हाइट है। हो सकता है उसके ऊपर भी कोई एक लेयर हो और तुम्हारी वेव क्या हो रही हो, उस लेयर से रिफ्लेक्ट होके रिटर्न हो रही हो और एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो कर रही हो। तो वो जो एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो कर रही है ऊपर की लेयर से रिफ्लेक्ट होके, तो उस हाइट को क्या बोलते हैं, वर्चुअल हाइट। यानी एक्चुअल में ऐसा हो रहा नहीं है, हम लोग एक्चुअल में अपनी वेव को क्या कर रहे हैं, बेंडिंग ही करा रहे हैं, टर्निंग करा रहे हैं आइनोस्फीयर लेयर से। लेकिन एक वर्चुअल वाला कॉन्सेप्ट लिया गया है। वर्चुअल वाला कॉन्सेप्ट क्या लिया गया है, वो इस तरीके से रिजेंबल हो रहा है, वो इस तरीके से, मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है, वो इस तरीके से, ऐसा हमको समझ में इस तरीके से आ रहा है कि वो वेव क्या हो रही है, दूसरी एस्पेक्ट में क्या हो रही है, वो वेव दूसरी एस्पेक्ट में आइनोस्फीयर के ऊपर एक लेयर है जिससे वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है। और वो जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो सेम पाथ फॉलो कर रही है जो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव हुआ था। तो इसलिए उसको जो हाइट जो कवर हो रही है उस लेयर से रिफ्लेक्ट होकर आने में, उसको बोलते हैं वर्चुअल हाइट। तो एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन एक एजम्पशन माना जा रहा है, एक कॉन्सेप्ट माना जा रहा है कि वो वेव जो है ना, वो दूसरी लेयर से रिफ्लेक्ट होकर भी वही पाथ फॉलो कर रही है। तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल हाइट। So virtual height is nothing but it is the reflection of wave which is taken by the layer above the ionosphere layer and following the same path as the wave which is refracted from the ionosphere layer। तो वो सेम पाथ फॉलो कर रही है, इसलिए देखो डॉटेड लाइन में आपको दिया हुआ है, तो डॉटेड लाइन में वही पाथ फॉलो कर रही है जहाँ पे एक्चुअल वाला पाथ फॉलो कर रही थी। तो एक्चुअल हाइट ये हो गई, वर्चुअल हाइट ये हो गई। तो वही चीज इधर पे समझाया गया है, द इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रेज फॉलो द पाथ that are exactly the same as they would have been, अगर वो मान लो would have been reflected by the layer above the ionosphere, तो ionosphere के ऊपर कोई लेयर उससे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, and this is called a virtual height of the layer। तो एक्चुअल हाइट तो एक्चुअली जो रिफ्लेक्ट होकर वेव आ रही है आइनोस्फीयर लेयर से वो होता है, और वर्चुअल हाइट वो होती है जो वेव आपकी ऊपर की कोई लेयर से मान के चलो रिफ्लेक्ट होकर सेम पाथ फॉलो कर रही, तो इसके लिए उसको वर्चुअल हाइट बोलते हैं। Then next one is critical frequency FC। तो critical frequency FC के बारे में क्या है, the critical frequency of layer is defined as the maximum frequency that is returned back to earth by that layer when the wave is incident at an angle 90 degree। तो critical frequency of layer किसको बोलते हैं, critical frequency of layer उसको बोलते हैं वो maximum frequency, वो maximum frequency वाला सिग्नल, वो maximum frequency वाला वेव जो रिटर्न बैक होगा उस लेयर से, उस लेयर से रिटर्न बैक हो सकता है जब वो वेव इंसिडेंट की हो कितने के एंगल से, एट एन एंगल 90 डिग्री से।
तो अगर कोई वेव आप ऊपर की तरफ भेज रहे हो, कहाँ पे भेज रहे हो, कोई लेयर की तरफ भेज रहे हो रिफ्लेक्ट कराने के लिए, तो अगर वो वेव 90 डिग्री के एंगल से इंसिडेंट किया हुआ है, तो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है जो 90 डिग्री से भेजा हुआ और जो रिफ्लेक्ट होकर अर्थ सरफेस को आएगा, तो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लेयर। यानी वो लेयर ऐसी कौन सी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करके वापस से अर्थ सरफेस से भेज सकता है जब वो फ्रीक्वेंसी 90 डिग्री से इंसिडेंट किया हुआ हो। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल को वो लेयर रिफ्लेक्ट करके भेज सकता है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लेयर। तो ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी उस लेयर की होती है, यानी वो लेयर रिफ्लेक्ट करके भेजना चाहिए अर्थ सरफेस को। तो वो लेयर कब रिफ्लेक्ट करके भेजना चाहिए, जब वो वेव कौन से एंगल से भेजा गया हो, 90 डिग्री के एंगल से भेजा गया हो। तो ऐसा कौन सा मैक्सिमम वाला फ्रीक्वेंसी अपन भेजे 90 डिग्री के एंगल से, तो वो लेयर रिफ्लेक्ट करके भेजेगा अर्थ सरफेस को, तो उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी नॉर्मली F2 लेयर की कितनी है, 5 to 12 मेगाहर्ट्ज। यानी नॉर्मली 5 to 12 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल जो है वो F2 लेयर से रिफ्लेक्ट होके आता है, वापस से आता है कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे आता है, जब वो 90 डिग्री एंगल से भेजा गया हो। समझ में आई बात। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ लेयर क्या होती है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ लेयर वो लेयर की वो मैक्सिमम वाली फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल जो रिफ्लेक्ट करके भेज दे अर्थ सरफेस पे, जब उसकी तरफ वो 90 डिग्री के एंगल से इंसिडेंट किया हुआ हो, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। देन द थर्ड वन इज मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, MUF। MUF के बारे में क्या दिया हुआ है, MUF is the highest frequency that can be used for skywave propagation between two given points on the earth। तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मैक्सिमम वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो स्काई वेव कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है। यूज किया जा सकता है का मतलब क्या होता है, यूज किया जा सकता है का मतलब ये होता है कि वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होकर अर्थ सरफेस पे आना चाहिए। तो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है जो अपन जहां तक यूज करें तो वो आ सके, वापस से रिफ्लेक्ट होके आ सके अर्थ सरफेस पे। तो MUF क्या है, मैक्सिमम यूज, यानी कितना मैक्सिमम वाला फ्रीक्वेंसी आप यूज कर सकते हो जब वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होके आएगा अर्थ सरफेस पे। तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी यूज फॉर, जो यूज किया जा सकता है जिसके लिए, स्काई वेव कम्युनिकेशन के लिए, बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स ऑन दी अर्थ। समझ में आया, 2 पॉइंट ऑन दी अर्थ इसलिए दिया हुआ है, यानी 2 अर्थ के 2 पॉइंट पे तो हम लोग को प्रोपोगेट कराना है ना वेव को। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना सिग्नल है जो बराबर से रिफ्लेक्ट होके आएगा, रिटर्न बैक होगा अर्थ सरफेस पे। सो द वैल्यूज ऑफ MUF आर इन द रेंज ऑफ, तो मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है वो कितने से कितने मेगाहर्ट्ज में दिया हुआ है, 8 to 35 मेगाहर्ट्ज। यानी स्काई वेव कम्युनिकेशन के लिए मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी जो है वो रिफ्लेक्ट होके आ सकती है, 8 to 35 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आ सकती है। हम लोग ने स्काई वेव प्रोपोगेशन का फ्रीक्वेंसी रेंज देख चुके हैं, कितना देखे थे हम लोग ने, 3 to 30 मेगाहर्ट्ज। तो मैक्सिमम अब कितना तक आ सकता है, तो मैक्सिमम 35 मेगाहर्ट्ज तक का आ सकता है रिटर्न बैक होके। तो MUF का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, MUF का फॉर्मूला दिया हुआ है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यानी कोई भी फ्रीक्वेंसी, कोई भी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना हो, तो अगर आपको इंक्लिनेशन एंगल मालूम है, थीटा मालूम है, तो आप उसका मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर अपना फाइंड आउट कर सकते हो। अगर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ लेयर मालूम है और वो कौन से एंगल से भेजा गया वो मालूम है, तो आप मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। इसके ऊपर अपना प्रैक्टिकल भी है, हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे सिमुलेशन में। सो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते किससे, FC, और अपॉन में कॉस थीटा था, तो कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक थीटा, इसलिए उसका MUF का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या लिख दिया है, FC सेक थीटा। तो MUF का फॉर्मूला था क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय कॉस थीटा, जहाँ पे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ लेयर को डिनोट करते हैं FC से, और ये जो थीटा है ना वो कितने के एंगल से वेव को इंसिडेंट किया गया है। सो ये इंक्लिनेशन एंगल है, जो एंगल का इंसिडेंट कितने एंगल से किया गया है, वेव का कितने एंगल से इंसिडेंट किया हुआ है, वो थीटा ही है। तो अपॉन में कॉस थीटा है, तो न्यूमरेटर में आके उसका इनवर्स क्या होता है, सेक थीटा। तो MUF का फॉर्मूला क्या आ गया, FC सेक थीटा। इसी तरीके से और भी कुछ पॉइंट्स है, स्किप डिस्टेंस वगैरह और स्किप जोन, फेडिंग, ये चीज़ को मैं समझता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँ। आई होप यहाँ तक आज के लेक्चर में ठीक है। तो मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों को क्या क्या चीज़ समझाया, मैंने आज के लेक्चर में आपको आयनोस्फीयर लेयर और उसके इफेक्ट के बारे में समझाया, जो 4 टाइप की लेयर्स थी उनके बारे में समझाया, एक्सप्लेनेशन दिया किस तरीके से वो एग्जिस्ट होती है, कौन कौन से टाइम पे एग्जिस्ट होती है वो बताया।
और टर्म्स एंड डेफिनेशन में मैंने आज 3 डेफिनेशंस को क्लियर किया है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल एंड वर्चुअल हाइट। ये टर्म्स एंड डेफिनेशन सब किससे रिलेटेड है? स्काई वेव प्रोपोगेशन से रिलेटेड है। दिस ऑल टर्म्स एंड डेफिनेशंस आर रिलेटेड विद स्काई वेव प्रोपोगेशन। तो स्काई वेव प्रोपोगेशन से रिलेटेड ये कुछ टर्म्स थी, जिसमें से एक्चुअल एंड वर्चुअल हाइट को अंडरस्टैंड किए, दैन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ लेयर को अंडरस्टैंड किए। एंड प्लीज म्यूट, जो भी है उसको म्यूट कर दे, डिस्टर्बेंस हो रहा है। शाद, प्लीज म्यूट। सो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेयर को हम लोग ने अंडरस्टैंड किए। फिर लास्ट हम लोग ने क्या अंडरस्टैंड किए? मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी को अंडरस्टैंड किए। तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी हम लोग ने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया, एफ सी सेक थीटा। In the next lecture, we are going to see some more definition in terms related with the sky wave, that is escape distance and escape zone and fading. These all are also terms related with the sky wave propagation. In the next lecture, we are going to see the remaining terms with their diagram also. So इसी तरीके से till the time, please stay at home, study well. Thank you very much for understanding, listening and joining. Thank you very much.